तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, है तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Let's start. We'll pray and start. Vijaya sister, can you pray and start? Can you pray? Vijaya sister is there? Okay, let's start. I'll pray. Thank you, Lord, for this day. Thank you for all your mercy and grace in our life, Lord. Thank you for giving us, Lord, and enabling us, Lord, to do to do and to sow your word in your kingdom, Lord. Lord, we pray for all the children, Lord. Open their eyes, Lord. Lord, we pray that make them your disciples, and Lord, may they have hunger and thirst for you, Lord. May they be attracted by you, Lord, we pray, Lord. Thank you once again. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, children. So, today we are going to see one story. Okay. Very good, children. All of you have put on camera without asking me you to put. Very good. Okay. So, can you tell me last time which memory verse song we have learned? First Peter 5:9 and James 4:12, right? Yes. Humble yourself before the Lord and he will lift you up, right? Okay. So today we are going to hear a story. Okay. Children like story, right? Even big people also like story. So today we are going to learn a story, okay, about one small child, okay, which of whom we were learning so far.
In our Friday Bible study, we were learning about him so much. Okay, so that child's name is, I'll tell you afterwards. Okay, first we will see the story. Just a minute. One minute, children. Okay, can you see? No. No? Okay, now can you see? Yes. 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 Okay, children. Do you know who is this, children? This is Pharaoh, a king of Egypt. Okay, so let's start our story. In Exodus chapter 1, this story is included, okay, in Exodus chapter 1 and 2. So, a new Pharaoh ruled over Egypt where the Israelites were living. Okay, Israelites were, Israel, who are the Israelites? God's children, okay. And in Egypt, they were living, and this Pharaoh was ruling over the Egypt. When he saw how many Israelites there were, he became afraid of their power. Okay, God made Israelites very strong and mighty. So he was afraid. He warned his people that if war came, the Israelites might side with their enemies and then leave the country. Okay, so he was telling all his people that if war comes, they will defeat us. So the Egyptians forced the Israelites to become their slaves. Okay. Tough slave masters made them build the cities of Pithom and Ramesses. Okay. They were making, Egyptians were making Israelites, children of God, to do lots of hard work in building the cities, big buildings, pyramids. Okay, they were making, Israelites were making. But in spite their poor treatment, the Israelites grew stronger and more numerous. Okay, they were growing more and more. So the Egyptians brutally forced them to work even harder. The two midwives who helped Hebrew women deliver their babies were called Shipra and Puah. Okay, they were helping to deliver babies. Pharaoh summoned them and ordered that if a Hebrew woman gave birth to a baby boy, they must kill it. Only if baby was a girl could they let it live. Okay, Pharaoh ordered that they have to kill all the baby boys.
But the midwives obeyed God rather than Pharaoh and let the baby boys live. So what happened? Pharaoh gave orders to his people that every baby boy born to a Hebrew woman must be thrown in the river Nile. So now he had ordered that baby boys should be thrown in the river of Nile. At that, children, river Nile is in Egypt. So he asked to throw all the small baby boys into the river Nile. When a Hebrew man and wife from the tribe of Levi had a baby boy, they hid him away from the Egyptians for 3 months. But as the baby grew older, it became harder to keep him hidden. His mama was not able to hide inside the house because baby is becoming big. He's became 3 months old. So his mother came up with an idea to keep her baby out of sight. She got a basket made from papyrus leaves and covered it in tar and pitch to make it waterproof. He made this basket waterproof. She put the baby in the basket and carried it down to the river Nile. Her young daughter Miriam helped her. Okay, see, baby has been put into the basket. She hid the basket in tall bulrushes for the side of the river. Miriam kept watch over the baby from a distance. Now what happened? What happened to that basket? Do you know, children? Because in Nile River, there were many, maybe crocodiles were there or fish were there. Okay. But God was protecting that baby. And what happened? That basket went to near to the Pharaoh's palace, where Pharaoh's daughter came down to the river to bath. She spotted the basket and sent one of her attendants to fetch it. Okay. So who came there? Pharaoh's daughter only to take bath. And she took that basket. When she opened the basket and saw the baby was crying, and she felt sorry for him. This one of the Hebrew babies, she said. She recognized that this one the child of one Israelite. Okay, but when baby was crying, she felt very sorry about him. Miriam, who had been watching, came up to the princess and asked, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" She asked, "Yes." Okay, so who came to Pharaoh's daughter? Miriam. Miriam was the baby's elder sister. Okay, and to whom she called? She called baby's mother. She called baby's mother only. Miriam ran to get her mother, and Pharaoh's daughter gave this baby to his mama only. Okay, so baby came back to his mama. Okay, see how God has protected baby and gave back this baby to his mama. Okay, when his mama and when his parents had a faith in God, God helped them to get their baby back. So the mother looked after her child until he was old enough to be taken to the princess, where he was brought up as her son. Okay, when he became big, his mother brought him to the Pharaoh's daughter to be called to her son. Okay, he became a son of Pharaoh's daughter.
He became he became prince of the Egypt. Okay. And what was his name? What was this baby's name? Can you tell me? Moses. Yes. So Pharaoh's daughter named him Moses. What is the meaning of Moses? That I drew him out of the water, drawn out from the water. That is the name of, that is the meaning of Moses. Okay. And he became prince of the Egypt. Okay. And we know how what happened afterwards, how God used Moses. Okay, we all know. So children, when we face difficult time in our life, okay, whenever we face any difficult moment, any trouble, what we have to do? We have to trust in God. Okay, God will make a way. Okay, where there was no way for Moses mother and father. Okay, but God made a way and kept their baby alive in very difficult and very scary situation. God made this baby alive, and this baby only, through this baby only, through this Moses only, God killed all the Egyptians in Egypt. Okay. So always trust. If we have trust in God, God will God will do many big things which we cannot imagine also. So always trust in God whenever we are facing any difficulty in our life, not to be afraid. See how Moses' mother was very strong. She did not afraid of the king's command. Okay. And she kept her baby hidden for 3 months. She kept her baby hiding inside the house, and then she made a basket, waterproof basket. Okay. And she kept in the river Nile. With faith she did all that things, she did with faith, and God honored her faith. Okay children, I hope you have learned the main things, that always trust in God when you face any difficult moment. Okay children. Okay, let's pray children. Okay, join your hands children. I want all of you to join your hands, close your eyes. Let's pray with faith. Okay, all of you concentrate in prayer. Concentrate what I am speaking. Okay, join with me. Dear God, thank you Lord for this story, a real thing which was happened more so many years ago. Lord, thank you Lord for strengthening us through this story. Lord, we pray that may these children grow in you and have trust and faith in you, Lord. Always, wherever they go, Lord, help them to trust in you and have faith in you, Lord. And above all, Lord, help them to obey you, Lord. Help them that they have hunger and thirst for you, Lord. Yes, Father, may they seek you, Lord, with all of their heart, Lord. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, children. Thank you very much. Sneha, over to you. Yes. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने पूरे हृदय से वंदना करें,
उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने पूरे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको साथ वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने दिया हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभुओं का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभुओं का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने पूरे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। हो तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। तेरी जय हो प्रभु,
हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है। प्रेम का तू सागर है, हो तू हमारे साथ है, तू बड़ा सामर्थी है, उद्धार करने में पराक्रमी है। प्रेम का तू सागर है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, हो तू प्रभु विश्वासु है, तू अधर्म को धोता है, क्षमा गुनाहों को करता है। तू प्रभु महान है, तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। आज कल और हरदम, आज कल और हरदम। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो भी आपने हम सबको इकट्ठा किया। जो भी आज हम वचन सुनेंगे, जो संकल्प के द्वारा सबको आशीष करना, और केवल सुनने वाले ने पर अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाए। जो भी आज ज्वाइन नहीं हो पाए, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन, सबको आशीष करना यीशु के नाम में। आमीन। थैंक यू स्नेहा, आराधना में अगुवाई करने के लिए। बच्चों की सेवकाई में अंजलि बच्चों का मेमोरी वर्स लेने के लिए भूल गई, तो बच्चे तैयार है, सो अपने मेमोरी वर्स बोल सकते हो और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। If all the children, if you all are ready with the memory verse, you can say one by one, and then we'll go on to the word. Sneha, would you like to start? Yes. Psalms 91 verse 1 to 11. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be a shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes you shall look and see the reward of the wicked, because you have made the Lord the Most High even your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for He shall give His angels charge over you
to keep you in all His ways. Amen. Tabitha, Psalm 9, verse 1 to 4. I will praise you, O Lord, with my whole heart. I will tell of all your marvelous work. I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. When my enemies turn back, they shall fall and perish in your presence. For you have maintained my right and my cause. You sat on the throne, judging in righteousness. amen. Yeah, Enoch, Psalm 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and deliverer. In the rock in whom I take my refuge. He is my shield and horn in my salvation, which is my stronghold. very good. Hepzibah, Teacher always praise unto thee. Give thanks. Give thanks. All certain. All circumstance. For this is God's will. God's will. For you. For you. In Christ Jesus. In Christ Jesus. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. 5. 16. 17. And 18. very good, Hepzibah, very good. Mahima, हाँ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर praise the Lord. आज नहीं मैं बोलो प्रेज द लॉर्ड Praise God. Praise the Lord, Mahima. Praise God. व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 1 का 1 का 31 वचन 31 वचन। मोबाइल पकड़। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको उस स्थान पर पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Praise the Lord. महिमा, आपका चेहरा देखा नहीं काफी समय से। वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा होगा। महिमा देखो, अंकल को देखो। प्रेज द लॉर्ड। नहीं दिख रहा है। ओके, इशिता है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। इशिता, इधर बोलो महिमा। क्या प्रेज द लॉर्ड। Praise God, brother. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। Philemon, hi. तू देख रहा है नहीं छोटा। Hello. ओके, इशिता। Praise the Lord, Uncle. प्रेज लॉर्ड। Psalm chapter 121, verse 1 and 8. I lift up my eyes to the hill. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watch over Israel will neither slumber or sleep. The Lord is our shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor on the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Amen. 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 Praise God. Stuti. Hello. Yes, Stuti. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 2 Chronicles 7 verse 14. Amen.
Amen. Matthew 11 verse 28 and 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, and for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Amen. Praise God. Yes, Philemon. Psalm 121. I will lift up my eyes to the hills. From where comes my From help? the video. Yes. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow your foot to move. He who keeps you will not slumber. Psalm 121 verse 1 to 3. Amen. और कोई है वचन बोलने के लिए? छोटे बच्चों का हो गया, बड़े बच्चे भी बोल सकते हैं। ओके, हम में से बड़े लोग कोई गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं। If anyone has a testimony to share, we have time. You can share the testimony. Brother, I have a testimony. Yes. There is a two testimony. Last Saturday, I have taken COVID Covaxin vaccination, and on Saturday and Sunday, my health was not good. And you and sister had prayed, and by God grace, Monday I was able to work for my office work. And second, on Monday night, my brother got a fever of 103.6. So also we have given prayer request to you and sister, and now his fever is gone, and even the second day full day was vomiting, and now he's fine. God have healed him. Thank you Jesus. Praise God, praise God. और कोई गवाही? प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बोलिए। हाँ, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। 3-4 दिन पहला मेरा तबीयत जरा बराबर नहीं था, सर्दी और बुखार था। आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। कोटि कोटि परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे जरा अच्छा है, आज मैं बाइबल स्टडी में बैठ पाई हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मुझे बचा लिया है। मैं डर रही थी कि ये दवाखाने महेंद्र मेरे को बोलते चल मम्मी दवाखाने जाएगा, मेरे को तो वो चेकअप करने का ही डर लग रहा था। तो मैं खाली घर में ही मैं बोला मैं नहीं आ रही हूँ, मैं घर में ही ये करेगी। मैंने थोड़ा गर्म पानी वो सब किया, खाली 3 बार क्रोसिन लिया और मुझे परमेश्वर ने चंगाई किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। आमीन। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज गॉड। मेरा भी गवाही है। यस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भी लास्ट वीक बहुत तबीयत खराब था, एकदम बहुत एसिडिटी सा हुआ था। एसिडिटी के बाद फिर पाइल्स का तकलीफ हुआ था, उसके बाद फिर मुझे लूज मोशन चालू हुआ, फिर उसके बाद सर्दी और खांसी चालू हुआ, और कल लास्ट नाइट को मुझे बुखार भी था। मगर आज मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया आज, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक टेस्टिमनी मेरा ये है कि मेरा ऑफिस में मेरा लास्ट अप्रैल में मेरा बॉस का कोरोना से डेथ हुआ था। मुझे 85 इयर्स का है। तो वो क्या जैन हिंदू लोग है ना, जैन लोग है। तो अभी मैं लास्ट महीने में ना 6-7 तारीख को ही जून में उसका बड़ा सा फोटो बना के मैं जिधर जो पीसी पे बैठती हूँ उसके सामने रखा। मतलब जैसे मैं जाती हूँ तो मेरे सामने वो दिखते थे। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्या
आते ही इनको दर्शन करना पड़ेगा क्या? मैं तो प्रेयर करके स्टार्ट करती हूँ, फिर भी ये क्या मेरे को नहीं देखना है ऐसा। मुझे नहीं, इनको हटा दीजिए, अब जो करने का आप कीजिए। मगर वो उनका तो बेटे लोग हैं, तो वो तो हटाएँगे नहीं, उनका दुकान, उनका सब दुकान है, उनका ऑफिस है, मगर हम बोलने से थोड़ी वो हटाएँगे परमेश्वर। मगर आप, अगर आपका इच्छा रहेगा ना, वो ज़रूर हट जाएगा। जो भी है आपका इच्छा है। फिर कल अचानक उनका फ़ोटो उनका बेटा आके वहाँ से हटा के दूसरा प्लेस पे शिफ्ट कर दिया। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को वो नहीं देखना चाहती थी, तो परमेश्वर ने मेरा वो इच्छा था कि वो कंप्लीट किया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, बोलिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज तक उसने और हमारे परिवार को संभाल के रखा, और आपने भी हमको ब्रदर जोश ने भी वो एक बात हमको याद दिलाई थी कि मूल मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूल मुझे जब पेड़ में डालते हैं तो रूट आपने बोला था, वो मेरे को बराबर याद है कि हमारा रूट जो था पहले से, मतलब बराबर प्रभु में नहीं था, और इसके वजह से हम इधर उधर थोड़ा बहक गए थे, आते थे चर्च में ये सब। अभी पूरा हमारा लॉकडाउन में, और जब मैं लास्ट ईयर थोड़ा बीमार मतलब होने के बाद थोड़ा मैंने होप छोड़ दिया था, सब कुछ मतलब बहुत तकलीफ था उसमें। लेकिन आपने भी मेरे को इनकरेज किया, बहुत लोगों ने इनकरेज किया, फिर मेरा रिपोर्ट भी नॉर्मल आया, हम लोग सब लोग घर पे आए, और प्रभु का धन्यवाद कि अभी जो जिस रूट से जाने का है वो रूट पकड़ के अभी चलना हम सीख रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमको ये दिन दिखाया। आज का दिन भी मतलब हर एक दिन एक मिरेकल है ना, उसके लिए हमारे लिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद सच्चाई से और आत्मा से करें, यही वो चाहते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद। और किसी को गवाही देना है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोगों ने गवाही दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर हम सबके जीवन में अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, और इन सब गवाहियों से भी बढ़कर, ओके, मैं और एक बार कह रहा हूं, इन सब गवाहियों से भी बढ़कर, ओके, जो शारीरिक चंगाई के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ओके, पर इससे भी बढ़कर है आपका आत्मिक चंगाई। परमेश्वर का स्वभाव में, परमेश्वर के रूप में हम सब बढ़ रहे हैं या नहीं, हम कैसे हैं, कौन से स्तर में है, हमारे आत्मिक जीवन में हम कहाँ पर है। ओके, तो हम जब प्रार्थना करेंगे, पहला हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया, हमें बचाया, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, ये दिन देखने दिया, प्रभु को धन्यवाद। ओके, लेकिन यदि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, चंगा किया है, तो अगला सवाल हम अपने आप को ये पूछना है कि परमेश्वर ने हमें जीवित क्यों रखा है। क्या इसीलिए रखा है कि हम और पैसा कमाए? क्या इसलिए रखा है कि हम अभी जो स्तर में है हम प्रमोशन प्राप्त करके और ऊंचे स्तर में पहुंचे? ये सब तो होता रहेगा, परंतु परमेश्वर प्राथमिक हमें चंगाई करके जीवित रखा है, ये दिन देखने दिया है। सबसे प्राथमिक मकसद वो चाहता है कि और थोड़ा दिन हम जीकर हम अपने आप को यीशु के जैसा, उनके स्वभाव के रूप में हम बनाएं अपने आप को। ओके,
God expects us, as long as we live on this earth, to draw nearer to him, to become more like him, to be transformed like his son. Okay, and to be like his son, Jesus. So let us understand the responsibility that God has given us while he has allowed us to live on this earth. Okay, आइए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक, आप में से कोई भी एक आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए। हर एक गवाहियों के लिए धन्यवाद दे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभु के। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है क्या है, धन्य है वे जिनको तू चुनकर अपने समीप लाता है प्रभु। हाँ प्रभु, हम आज आपके पास आ सकते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु, हमने जो भी पाप किए प्रभु, आपने हमें क्षमा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज एक दिन दिखाया प्रभु, हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपने प्रभु आपके हर एक प्रभु कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जो भी गवाहियां प्रभु आई है पिता परमेश्वर, आपने कार्य किया है उन्हें शारीरिक रीति से चंगाई देने के लिए प्रभु, आपने हमने सामर्थ दी प्रभु, ताकि वो वापस प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु जहाँ कहीं भी प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु चंगाई है, हम सबके प्रभु, हम सबके लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे आत्मिक चंगाई होने देना। जो क्षेत्र में प्रभु हम बीमार है प्रभु, हम वहाँ पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, आपके नाम को प्रभु और ऊंचा उठाने पाए प्रभु, आत्मिक रीति से प्रभु चंगाई पाके प्रभु, विजय पाकर शैतान की हर एक चाल को समझकर प्रभु, और प्रभु विजय पाकर प्रभु हम आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब एक मन होके प्रभु आपके पास आए हैं। आपका वचन प्रभु हमें शुद्ध करता है पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनकर पिता परमेश्वर हम प्रभु अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में देखते हुए जाए पिता परमेश्वर। और जिस तरह पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कैसा, हम भी प्रभु कहने पाए पिता परमेश्वर कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रभु उसको पूरा करने पाए प्रभु। जैसे हमारी शुरुआत थी वैसे हमारा अंत भी होना चाहिए पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु आशा लगाए हुए हैं प्रभु आपके ऊपर कि हम अपने बल और सामर्थ से कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। आप हमें बल दीजिए और शक्ति दीजिए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और सब गवाहियों के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद ये समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबको और एक बार इस प्रकार से इकट्ठा किया ये संगति का लाभ उठाने के लिए। गवाहियों के द्वारा, आराधना में, बच्चों के सेवकाई में, वचन के द्वारा हम जितने भी हो सके हमारे जो भी रुकावटों के बावजूद हम जितने हो सके संगति जारी रखने का एक प्रयास और प्रभु में बढ़ने का एक प्रयास जारी रखे। दो सूचना है वचन शुरू करने के पहले। जब हम सब लॉगिन करते हैं, अब मेरा आवाज सबको क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है। ओके यस। जब हम सब लॉगिन करते हैं जूम में, कृपया करके देखिए कि आपका नाम आपने डाला है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट में मुझे दिखाई दे रहा है किसी का एक व्यक्ति ने लॉगिन किया है एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड करके। कृपया करके वो नाम हटाकर अपना नाम डालिए, क्योंकि मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है जानना जरूरी है। ओके, whoever has logged in,
as Android Blue Droid. Please rename, please change the name, display your name please. Thank you. दूसरा सूचना, अगस्त महीने में, अगला महीना, पूरा महीना मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। मैं 1 महीने का ब्रेक ले रहा हूँ। मेरे जो बच्चों का जो ट्यूशंस जो मैं लेता हूँ उसमें भी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और बाइबल स्टडी में भी मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ 1 महीने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप में से कुछ लोग अगला महीना बाइबल स्टडी साथ मिलकर चलाएंगे। तो वो मैं व्यक्तिगत रूप में आप लोगों से बात करूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा इस बाइबल स्टडी में। सो जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, मैं अटेंड करूंगा, बाइबल स्टडी अटेंड करूंगा, लेकिन आप लोगों की तरह एक व्यक्ति बनकर मैं अटेंड करूंगा। लेकिन आप में से कोई जिम्मेदारी लेकर अगला महीना, अगस्त का महीना बाइबल स्टडी चलाना होगा। सो कृपया इस चीज को भी प्रार्थना में रखिए। आइए हम वचन में जाएंगे। मंगलवार का दिन हम वचन के द्वारा एक अगुवाई बनना या पासवान बनने का जो क्वालिटीज, व्हाट डू यू कॉल फॉर क्वालिटीज? गुण। हाँ, गुण, सॉरी। तो पासवान या अगुवाई बनने का गुण क्या क्या है वो हमने देखा। और अगुवाई के साथ साथ जो सेवकाई में जो सेवक लोग रहते हैं, उन सेवकों का भी गुण क्या होना चाहिए वो हमने देखा। तो हम पहला तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय में से देख रहे थे, परंतु हम ये देखने का कारण क्या है, हमारा जो बाइबल स्टडी का अभ्यास प्रेरितों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में हम कैसे प्रेरितों ने जो पहला कलीसिया स्थापित हुआ था, उस पहला कलीसिया में जब एक समस्या खड़ा हुआ, तब वहां पर कैसे प्रेरितों ने उस समस्या का हल ढूंढा। उन लोगों में से 7 ऐसे हुनहार जो अच्छे गवाही है, ऐसे लोगों को चुनने कहा, पवित्र आत्मा से संपूर्ण, भरा हुआ और बुद्धि से भरा हुआ। ये 3 गुण मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इस जीवन के भागदौड़ में हमारे खुद के इच्छाओं को हम जाने अनजाने में आगे रखते हुए कई बार हो सकता है कि कलीसिया भी हमारे इच्छाओं के अनुसार, हमें जिसको अच्छा लगता है उसको हम अगुवाई बनाएंगे या पासवान बनाएंगे या सेवक बनाएंगे, हमारे बुद्धि के अनुसार। हाँ, ये व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, या ये व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत फेमस है, पॉपुलर है, लोग जानते हैं, ऐसा सब सोचकर, ओके, या बाहरी रूप को देखकर, ओके, बाहरी चीजों को देखकर हम कभी कभी लोगों को चुन सकते हैं। ओके, ये गलती हम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम प्रेरितों का 6वां अध्याय का पहला 7 वाक्य पढ़कर वहां रुककर हम उसके गहराई में हम उतर रहे हैं और अगुवाई कैसे चुनना चाहिए। तो सबसे प्राथमिक कोई भी सेवकाई के लिए
प्रेरितों का 6वां अध्याय में तो खाना परोसने का सेवकाई का बात हो रहा था। उसके लिए भी यदि प्रेरितों को ये उचित समझा, ये उचित लगा उनको कि खाना परोसने के लिए भी पवित्र आत्मा से संपूर्ण भरा हुआ एक व्यक्ति, बुद्धि से भरा हुआ और अच्छा गवाही है, ऐसा एक व्यक्ति होना जरूरी है, ऐसा उनको लगा, तो कितना जरूरी है एक पासवान के उस पद के लिए या अगुवाई के उस पद के लिए, उस सेवकाई के लिए, या ऐसे अनेक सेवकाई के लिए, संडे स्कूल का टीचर हो या आराधना अगुवाई करने वाला व्यक्ति हो, ऐसे कोई भी कलीसिया के उन्नति के लिए कोई भी सेवकाई में कितना अधिक जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ और बुद्धि से भरा हुआ और एक अच्छा गवाही वाला व्यक्ति को चुनना। तो ये बहुत ही हमें प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेने वाला एक कार्य है। जब किसी को हम चुनते हैं प्रार्थना पूर्वक, मैं ऐसे कई जगहों में ऐसा देखा है, ओके, और ये दुख की बात है कि बहुत ही साधारण तरीके से इन चीजों को लिया जाता है। कैसे भी चुनाव कैसे भी किया जाता है एक व्यक्ति को अगुवाई के रूप में, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना पूर्वक एक व्यक्ति के बारे में सोचें, कुछ समय एक मंडली होकर प्रार्थना करें और फिर चुनाव करें, परमेश्वर जैसे अगुवाई करता है वैसे। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट है इन चीजों में, ओके। और मैंने ये भी कहा पिछले बार कि पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय के अनुसार एक पासवान या अगुवाई के उस सेवकाई के लिए पुरुष का चुनाव होना बहुत जरूरी है, महिला नहीं, ओके। और मैंने ये कहा आप लोगों से कि कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सुनने के लिए कि महिलाएं उस सेवकाई के लिए महिलाओं को चुनना, ये वचन it doesn't permit us. What does it say for permit? अनुमति नहीं देता। अनुमति नहीं देता, ओके। तो उससे हमें अच्छा लगे या न लगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वचन क्या है समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें गलतफहमियां बहुत कुछ है। एक गलतफहमियां ये है कि लोग शायद पूछेंगे कि क्या हम सब प्रभु के नजर में एक नहीं है? वचन कहता है कि क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब एक है, ओके। जरूर हम सब एक है, प्रभु के नजर में हम एक है, उसमें कोई दो विवाद नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपने स्वरूप में बनाया है, ओके। लेकिन कलीसिया चलाने के लिए हम केवल उस कार्य का बात कर रहे हैं। कलीसिया चलाने के लिए वचन स्पष्ट कहता है कि एक पुरुष में से चुनना जरूरी है। तो ये कलीसिया चलाने वाली बात है। उसमें जो स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने एक स्वरूप में बनाया, वो वहां पे उल्लंघन नहीं होता, वो वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, ओके। क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को जिस प्रकार से बनाया है, ओके, पुरुष और स्त्री के दोनों के क्या बोलते हैं, गुणों में अंतर है। वो अंतर के अनुसार उसके वजह से
कुछ जो कार्य और जिम्मेदारियां पुरुष करना बेहतर और कुछ दूसरे जिम्मेदारियां स्त्रियां करना बेहतर। जो जिम्मेदारियां स्त्रियां करना है वो पुरुष ये नहीं कह सकता क्यों हम नहीं कर सकते। अभी पुरुष कल उठकर कहेगा कि क्या हम बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, नहीं, वो पुरुष नहीं कर सकता। ओके, ऐसे कई चीजें हैं। ओके, which is God in his wisdom has created man and woman in a very beautiful way. Okay, तो पुरुषों का जो गुण से परमेश्वर ने पुरुषों को बनाया है और स्त्रियों को जिस गुण से बनाया है, हर एक अपने अपने गुणों के अनुसार परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए सही प्रकार से यदि वचन के अनुसार कार्य करेंगे, ओके, तो जैसा हमने प्रेरितों का 6वां अध्याय में पढ़ा, वचन फैलता जाएगा, परमेश्वर के कलीसिया में आत्माएं शिष्य जुड़ते जाएंगे और प्रभु का महिमा होता जाएगा। If we do everything in accordance to the word of God, then it will be so beautiful that God's word will spread. God will bring disciples. Okay, the disciples will be added in the church and it will bring glory to God. Okay, so तो ये नया नियम का एक नया नियम में लाया हुआ एक नया ऐसा एक रूल नहीं है। पुराने करार से ही हम देखते हैं, हमने निर्गमन का पुस्तक में, यदि आप लोगों को याद है, अभी हमने विस्तार में पढ़ा था कि कैसे मंदिर के उस सेवकाई में परमेश्वर पुरुषों को चुनने के लिए कहा था, मूसा के द्वारा ये आज्ञा दिया था पुरुषों को चुनने के लिए। ऐसे कई चीजें हैं जो आरंभ से ही ऐसा था। ओके, तो पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि उस पद के लिए, उस सेवकाई के लिए पुरुष का गुण क्या होना जरूरी है। यदि वो गुण वाला पुरुष है तो वो उस सेवकाई के लिए काबिल है। ओके, और ऐसे सेवकों का, ऐसे पुरुषों का पत्नी के बारे में भी एक शब्द वहां पर लिखा है। 3 अध्याय का 11 वाक्य पढ़िए, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 11 वाक्य। प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली न हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। शुरुआत और एक बार पढ़िए। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। ओके, सिर्फ उतना ही लिखा है, स्त्रियों को भी। यस। ओके, इंग्लिश बाइबल में लिखा है लाइकवाइज देयर वाइव्स, मतलब उनके पत्नियों के बारे में लिखा है। किसके पत्नियों के बारे में? जो अगुवाई, हाँ सॉरी, उसी प्रकार से लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि अगुवाइयों को किस प्रकार से चुनना है, जो पुरुष के गुणों के बारे में लिखकर फिर उसके बाद लिखा है कि उसी प्रकार से उनके पत्नियां कैसे रहना चाहिए, वो भी लिखा है। So in verse 11 in English it says, likewise their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. तो उनके पत्नियां क्या होने चाहिए? पढ़िए। गंभीर, दोष लगाने वाली न हो, हाँ, दोष लगाने वाला नहीं, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सब बातों में विश्वास योग्य हो। तो
ये बहुत गंभीर बात है, किस प्रकार से हम चुनाव करते हैं, कौन से पुरुष को, और केवल पुरुष नहीं, उस पुरुष के पत्नी के बारे में भी 2 शब्द लिखा है जो हमें ध्यान देना है। कैसा है जब एक पुरुष को पासवान या अगुवाई के रूप में चुनते हैं, पत्नी का भी, उसके पत्नी का भी एक प्रकार का स्वभाव लिखा है। यदि ऐसा है तो, क्योंकि सेवकाई करते वक्त कलीसिया में स्त्रियां भी है, तो उस अगुवाई या पासवान के जो पत्नी है वो उन स्त्रियों के बीच में सेवकाई करेगी, तो इसके लिए उनका गुण भी बहुत जरूरी है देखना। ओके, अब हम जाएंगे उस विषय पर कि जो प्रश्न लोगों के मन में है कि स्त्रियां क्यों पासवान नहीं बन सकती या अगुवाई नहीं बन सकता। ओके, पहला तिमोथियस का पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 वाक्य से पढ़िए। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 11। स्त्री को भी चुपचाप स्त्री अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश न करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ओके, बस 11 वाक्य कहता है, लेट अ वुमन लर्न इन साइलेंस विथ ऑल सबमिशन, एंड आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच और टू हैव अथॉरिटी ओवर अ मैन, बट टू बी इन साइलेंस। अब यहाँ पे स्त्रियां पढ़ी, और एक बार हिंदी में पढ़िए 11 वाक्य। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ओके, ये शब्द जो चुपचाप या इंग्लिश में साइलेंस लिखा है, इसका अनुवाद हमें मूल अर्थ में समझना बहुत जरूरी है। नया करार जो है यूनानी भाषा में लिखा गया था। ओके, और यूनानी भाषा में इन ग्रीक लैंग्वेज the meaning of the word silence, okay, it was not that women are not allowed to speak. That is not the meaning of silence in the Greek language. The meaning is in quietness, quietness या एक अधीनता के साथ कार्य करना, वो है वो साइलेंस का मतलब। ओके, तो चुपचाप रहने का मतलब अधीनता होकर कार्य करना, वो है। ओके, जैसे एक परिवार में भी जब पति और पत्नी है, तो एफिसियों का पुस्तक पति और पत्नी का गुण क्या होना चाहिए वहां पर लिखा है, जो अक्सर हम विवाह के समय पर पास्टरों को प्रचार करते हुए हम सुनते हैं कि एक पति का जिम्मेदारी क्या है और एक पत्नी का जिम्मेदारी क्या है। ओके, पति जो है पत्नी को प्रेम करना चाहिए जैसा परमेश्वर या यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, उस प्रकार से। और पत्नी जो है अपने पति का अधीन रहना है। तो ये सब बातें हम कई बार सुने हैं। तो जब वहां पर पत्नियों के बारे में लिखा है कि पति का अधीन रहना, क्या उसका ये मतलब है कि पत्नियां कुछ बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अधीनता से कार्य करना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्रियों के ऊपर परमेश्वर दिया है। स्त्रियों को जिम्मेदारी है, लेकिन वो अधीनता से। क्या उसका ये मतलब है कि पुरुषों को कोई अधीनता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला कोरिन्थ का पुस्तक 14 अध्याय उसका 34 वाक्य क्या कहता है? पहला कोरिन्थ 14 अध्याय सॉरी वो नहीं, एक मिनट, पहला कोरिन्थ 11 अध्याय, यस 11 अध्याय उसका 3 वाक्य, 1 Corinthians chapter 11 verse 3। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो
कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो ये जो तरीका स्थापित किया है वो सब कुछ उत्तम तरीके से चलने के लिए है। ओके, ये परमेश्वर यीशु का सर है और यीशु मसीह पुरुष का सर है और पुरुष एक स्त्री का सर है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं कि स्त्रियां अपने अपने पुरुष या पति का अधीन होना है, क्योंकि पति जो है पति जो है पत्नी का सर है, इसीलिए अधीन होना है। लेकिन अधीन का मतलब ये नहीं कि एक पुरुष अपने स्त्री को या एक पति अपने पत्नी को ये कहे कि वचन कहता है कि तू मेरा अधीन रहे तो चुप रहे, नहीं। सो इट इज नॉट अबाउट चुप रहना, इट इज अबाउट अधीनता से कार्य करना। बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है स्त्रियों में। ओके, तो कार्य करना है, लेकिन अधीनता से सर पति है ये समझकर। उसी प्रकार पुरुषों के ऊपर भी एक सर है। पुरुष ये नहीं कह सकता कि हम पत्नी का सर है इसीलिए हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जो भी करे हमें पूछने वाला कोई नहीं। ऐसे भी बहुत पुरुष लोग हैं जो सोचते हैं ऐसे, ये गलत है। ओके, हमारा सर यीशु मसीह है। हम वचन के आधार पर कार्य करना है हर एक पुरुष, नहीं तो हम स्त्रियों को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको दोष नहीं लगा सकते। तो हर एक को अधीन रहना है, हर एक को अधीन रहना है। ओके, और हम एक दूसरे के भी अधीन रहना है। ऐसा एक वचन है, एक मिनट, Ephesians 5, before that husband and wives. Before husband and wife, yes, good, thank you. Ephesians 5 verse 21. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, तो पुरुष ये नहीं कह सकता स्त्रियों को कि तुम मेरा अधीन रहना है, चुप रहो। नो, चुप रहने वाली बात नहीं है। लेकिन पुरुष यदि कुछ गलत करता है तो पुरुष ये समझना जरूरी है कि हम भी एक क्या बोलते हैं, एक प्रकार का अकाउंटेबिलिटी में है, एक जवाब देना है हमें एक दूसरे को। मुझे अपने पत्नी को जवाब देना है। यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो मुझसे बात कर सकती है, पूछ सकती है, सवाल कर सकती है और मुझे जवाब देना है। तू कौन है सवाल करने वाला? मैं नहीं बोल सकता। वचन कहता है हमें एक दूसरे का भी अधीन रहना है। ओके, we have to submit to one another in the fear of God. परमेश्वर का भय रखते हुए हमें एक दूसरे का अधीन रहना है। ओके, तो मैं ये विस्तार में इसके लिए बताया। हमारा विषय पति पत्नियों का नहीं है, परंतु कलीसिया में कलीसिया चलाने का जो जिम्मेदारी, जो पासवान का जिम्मेदारी, अगुवाई बनने का जो जिम्मेदारी का है। ओके, लेकिन वो जिम्मेदारी समझने के लिए हमें पति पत्नियों का भी, एक परिवार का भी, जो परिवार किस प्रकार से चलना है वो भी समझना हमें जरूरी है। ओके, तो स्त्रियों के विषय में जब यहाँ पर 1 तिमोथी 2 अध्याय 11 और 12 वाक्य जो हमने पढ़ा, वहां पर जब लिखा है कि स्त्रियां क्या रहे, चुप रहे और अधीनता में रहे, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री उपदेश न करे, न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ओके, तो इसलिए मैंने चुपचाप का अर्थ कहा। तो चुपचाप का अर्थ कुछ नहीं बोल सकता ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, ओके,
कि स्त्रियां कलीसिया में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो वचन में, नए करार में हो या पुराने करार में, स्त्रियां भविष्यवाणी किया है। ओके, स्त्रियां सुसमाचार बांटा है। और मैं थोड़ी देर में आपको सबसे मुख्य बात में मैं कहने जा रहा हूं, जो पुनरुत्थान के बारे में, यीशु का पुनरुत्थान के बारे में, जो परमेश्वर अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, ओके, स्त्रियों को प्रकट हुआ, जिस पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास का नींव है। पौलुस कहता है कि यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। उसका मतलब हर व्यक्ति का विश्वास, कलीसिया का विश्वास, जो यीशु मसीह के मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठने पर निर्भर है। ओके, उस विश्वास का नींव जो पुनरुत्थान है, यीशु का पुनरुत्थान, वो स्त्रियों को परमेश्वर ने प्रकट किया सबसे पहला। और उन स्त्रियों ने इन प्रेरितों को जाकर बताया। यदि हम उस बात को मनन करेंगे तो वो काफी है समझने के लिए कि एक कलीसिया चलाने के विषय में जब पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि स्त्रियां चुप रहे, वो चुप का मतलब निशब्द रहना नहीं है, अधीनता से सेवकाई करना वो है, अधीनता से सेवकाई करना। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट Paul is not against women doing ministry in the church ministry. Okay, Paul is not against. So when Paul says let women be silent, be in silence, okay, in the Greek original language which the New Testament was written, it means that the women should function in quietness, in submissiveness. Okay, अधीनता से कार्य करना है। ये परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ एक तरीका है, अधीनता से कार्य। तो साइलेंस का मतलब वो है। दूसरा मुख्य बात वहां पर 12वां वाक्य में जो हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, I do not permit a woman to teach or to have authority over a man. तो सबसे मुख्य वो है कारण। कलीसिया चलाने के लिए जो पासवान का जो पद है या अगुवाई का जो एक पद है, उस पद के साथ एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है? पासवान क्या करता है? कलीसिया में जो भी आते हैं उनको सिखाते हैं, उनको ताड़ना देते हैं, ओके, उनको डांटना या उनको समझाना, ओके। तो वो सब जो कार्य है, क्योंकि वो पद और वो जिम्मेदारी उस पद के साथ आता है, ओके। स्त्रियां उस पासवान का उस पद नहीं धारण कर सकता, क्योंकि कलीसिया में पुरुष लोग भी आते हैं और स्त्रियां पुरुषों को सिखाना मतलब एक प्रकार से वो पद, पासवान का पद, ये it calls for submission. What do you say that in Hindi? The role of a pastor or a leader, okay, it demands submission from the congregation. एक परमेश्वर या पासवान की जो भूमिका होती है, उस भूमिका के तहत पासवान मांग करता है कि उसके जो लोग हैं उसके अधीन रहे। Yes. तो उस पासवान के रूप में यदि एक महिला रहे तो
और वो मांग रखे कि अधीन रहे, किसको मांग रखेगा वो? क्योंकि कलीसिया में केवल स्त्रियां नहीं है, पुरुष भी है, तो पुरुष स्त्री का अधीन नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब मैं जानता हूं कि एक दूसरे का अधीन रहना वो अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है, परंतु एक स्त्री का सर पुरुष है और पुरुष का सर यीशु मसीह है। तो वो सब, इन सब वचनों को साथ में रखते हुए केवल कलीसिया चलाने का उस पद के लिए हम कहते हैं कि स्त्रियों को परमेश्वर या परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। ओके, आई होप दैट एक्सप्लेन्स। अगर किसी के भी मन में ऐसा कुछ विचार या एक प्रश्न या एक डाउट ऐसा कुछ था, तो आई होप दैट इज क्लियर। दूसरा मुख्य बात जो मैंने जिक्र किया था कुछ समय पहले कि यीशु के पुनरुत्थान के विषय में जो विश्वास का, हम मसीह लोगों का विश्वास का नींव है, यदि यीशु जी नहीं उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। वही पौलुस ने कहा ये बात कि हमारा विश्वास व्यर्थ है यीशु यदि जी नहीं उठा होता। ओके, और यीशु के जी उठने का प्रकटीकरण स्त्रियों को हुआ और स्त्रियों को वो सौभाग्यता मिला कि जाकर पुरुषों को बताने के लिए कि यीशु जी उठा। ओके, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कलीसिया के सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य के सेवकाई में स्त्रियों का एक बहुत मुख्य एक भाग है। तो कोई भी स्त्री ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि पासवान का वो पद स्त्रियों के लिए नहीं है इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। नो, ऐसा नहीं है। ओके, सब कुछ उत्तम तरीके से होने दो, वचन के अनुसार होने दो। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वचन स्पष्ट कहता है। ओके, यदि वचन के अनुसार कलीसिया चलेगा तो परमेश्वर का आशीष रहेगा, वचन फैलेगा। ओके, परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य होगा और सब कुछ उत्तम होगा। समरिया स्त्री के बारे में भी यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक समरिया स्त्री को कैसा यीशु मसीह मुलाकात करके उनके साथ थोड़े समय बिता के उनका जीवन परिवर्तन हुआ और वो क्या किए। यूहन्ना 4 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि वो समरिया स्त्री नगर में जाकर नगर के पुरुषों को जाकर कहा, आओ आकर देखो मैं जिस व्यक्ति को मिला, ओके, क्या वही मसीहा नहीं है? तो जिस मसीहा का लोग सालों से राह देख रहे, ओके, समरिया नगर में जब वो मसीहा कदम रखा, एक स्त्री को वो सौभाग्यता मिला जाकर सुसमाचार सुनाने का। ओके, यही मसीहा यीशु जब पैदा हुआ उस मंदिर में एक भविष्यवाणी करने वाली एक स्त्री थी। I forgot her name. Can somebody remind me? Anna the prophetess. Anna the prophetess. तो वचन स्पष्ट उस एन्ना के बारे में कहता है कि कैसे वो अपना भूमिका निभाई, अपना जिम्मेदारी निभाई। तो भविष्यवाणी के विषय में, सुसमाचार सुनाने के विषय में, ऐसे अनेक सेवकाई में स्त्रियों का एक मुख्य भाग है। ओके, क्यों ना हम अपने अपने जिम्मेदारियों को ध्यान रखते हुए परमेश्वर आपको जिस बुलावट दिया है, जो वरदान दिया है, वो वरदान इस्तेमाल कीजिए। ओके, और कोई भी ऐसा दावा न करे कि मुझे ये वरदान मिला है लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है, ऐसा न हो।
एक स्त्री ये ना कह सके कि मुझे पासवान बनने का वरदान मिला है, लेकिन वो वचन के साथ नहीं मिलता। ओके, तो there was one more point that I wanted to say, which तिमोथियस का पुस्तक में okay, there is a verse in the book of Timothy, I guess, which says about how older women should minister to younger women. Okay, I'm sorry. तीतुस का पुस्तक दूसरा अध्याय, टाइटस चैप्टर 2। तीतुस का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, टाइटस चैप्टर 2। तो ये दूसरा अध्याय आप लोग विस्तार में व्यक्तिगत रूप में आप पढ़ सकते हो। वो अध्याय का शुरुआत कलीसिया में अलग अलग सेवकाई क्या क्या है उसके बारे में लिखा है। ओके, विशेष करके मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े चौथा वाक्य, तीसरा वाक्य। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हाँ, ये भी पौलुस ही कह रहा है। ओके, जो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि मैं अनुमति नहीं दूंगा कि स्त्रियां कलीसिया में सिखाए, वही पौलुस यहाँ पर कहता है कि स्त्रियां सिखाए। पढ़िए और एक बार। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तो अच्छी बातें सिखाने वाले हो। ओके, तो पियक्कड़ ना हो, दोष लगाने वाले ना हो। क्या नहीं होना चाहिए लिखा है और क्या होना चाहिए, तो सिखाने वाले हो। लेकिन किसको सिखाने वाले? चौथा वाक्य पढ़िए। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। हाँ, तो जो ये बूढ़े स्त्रियां, ऐसा लिखा है ना, तीसरा वाक्य शुरुआत। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का, बूढ़ी स्त्रियां। So it talks about the elderly women in the church. What is their role? Their role is to encourage, to teach the younger women. Okay, so टीचिंग कर सकते हैं, स्त्रियां सिखा सकती है, लेकिन महिलाओं के मंडली में जो यंगर विमेन है, उनको जो भी अच्छी बात है, हर एक चीज है जो वचन स्त्रियों के विषय में कहता है वो सिखाए, वो अच्छी बात है। और एक उदाहरण बने जो यंगर विमेन को। ओके, सो सेवकाइयां अनेक है, बच्चों का सेवकाई भी है, और सुसमाचार का, भविष्यवाणी का। ओके, व्हेन आई से भविष्यवाणी, आप लोग मेरे जबान से जब ये शब्द आप सुनते हो भविष्यवाणी, आप लोग याद रखें जो मैंने भविष्यवाणी का
अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था। भविष्यवाणी मतलब भविष्य के बारे में बताने वाला केवल नहीं। ओके, हिंदी अनुवाद में कुछ लिमिटेशंस है। तो द वर्ड प्रोफेसी in English, it means whatever God has spoken, whatever God spoke to you, whatever God has impressed in your heart, you share it. Okay, तो इसलिए जब वरदानों का विषय जब हम सीख रहे थे पिछले साल, तब मैंने आप लोगों को सभी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी को मैंने उत्साहित किया था। ओके, जब बाइबल स्टडी चल रहा है तब भी आप लोग, आपको परमेश्वर ने यदि आपके हृदय में कुछ वचन डाला है तो आप बांटो दूसरों का उन्नति या उत्साहित करने के लिए। वो क्या है? वो भविष्यवाणी है। तो भविष्यवाणी वो शब्द, हिंदी शब्द में मत जाओ कि भविष्य के बारे में बताना केवल भविष्यवाणी है। नहीं, आपके हृदय में परमेश्वर ने कुछ बात किया है, दूसरों को आप शेयर करो। ओके, दिस इज व्हाट गॉड स्पोक टू मी। हो सकता है परमेश्वर आपके उस शब्दों के द्वारा दूसरों से भी बात करे। वो है परमेश्वर का वाणी, उसको कहता है भविष्यवाणी हिंदी में, लेकिन एक्चुअली इट इज प्रोफेसी। परमेश्वर का वाणी है, जो परमेश्वर ने कहा वो आप दूसरों को बता रहे। वो स्त्रियां कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ओके, इसलिए कुछ हफ्ते पहले जब मैंने देखा कि यमुना ने कुछ शेयर किया था व्हाट्सएप में कि परमेश्वर ने उनसे कुछ बात किया, तो मैंने यमुना से कहा कि आप शेयर कर सकते हो बाइबल स्टडी में। तो तब वो एक्सहॉर्टेशन में शेयर किया था। मैं विस्तार में आप लोगों को स्त्रियों का सेवकाई के बारे में बता रहा हूँ, पुरुषों का सेवकाई के बारे में। ये स्पष्टता होना बहुत जरूरी है ताकि कलीसिया में कोई गड़बड़ी ना हो, कलीसिया उत्तम तरीके से परमेश्वर के महिमा के लिए चले। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पहले यदि आप लोगों को कोई भी इस विषय को लेकर कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट है, आप बोल सकते हो। या तो अभी बोल सकते हो या व्यक्तिगत रूप में मुझे आप सवाल भेज सकते हो। यस, कोई भी पॉइंट है, सवाल है? कोई सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते वक्त हम पास्टर जेकब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका बर्थडे है 11 तारीख को, संडे, आने वाला संडे। यस, सो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे आत्मा के उन्नति के लिए सेवकाई कर रहे, उनके लिए प्रार्थना कर रहा। और साथ में हम कन्नन ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनका भी बर्थडे उसी दिन है, 11 तारीख को। दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबको यीशु के द्वारा ग्रहण किया। इसके लिए आपने हमारे हर एक अधर्म कामों को क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद। हमें आजाद किया पाप के बंधन से, इसके लिए धन्यवाद। पाप के परिणाम से, नरक से आपने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें आपका पुत्र कहलाने का अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके कलीसिया के विषय में हमने जो भी वचन के द्वारा सीखा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन सत्य है, इसीलिए हमारे जीवन में ये 100 गुना फल आने दे प्रभु। यस लॉर्ड, हम हर समय आपके वचन को ध्यान में रखते हुए हमारे चाल चलन को, हमारे विचारधारा को बनाएं। यस लॉर्ड, ना कि जो हम अक्सर देखते हैं अलग अलग मसीह मंडलियों में या लोगों के द्वारा जो हम सुनते हैं उसके अनुसार हम हमारे विचारधारा को न बनाएं, परंतु आपका वचन क्या कहता है उस वचन के आधार पर
हमारे विचारधारा को, डॉक्ट्रिन को हम बनाए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो भी वरदान आपने हम सबको दिया है, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, उन वरदानों को हम इस्तेमाल करते हुए आपके नाम का महिमा के लिए हम कार्य करें, सेवकाई करें, ऐसा होने दे परमेश्वर। इस बाइबल स्टडी में जुड़े हुए हर एक को आप आशीष करें प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, कन्नन ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले 1 साल, इतने सालों से आपने उनको बढ़ाया, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, ये दिन देखने के लिए आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में आपने उनको आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड। हर मुसीबतों में आपने उनको लेकर चला आगे, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जो भी परिवार का या रोज के दैनिक जीवन का जो भी बोझ उनके ऊपर है, वो बोझ अपने जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निभाने के लिए आप उनको बुद्धि, आपके बुद्धि और आपके गुणों से आप आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड। हम सब एक मन होके कन्नन ब्रदर के लिए हम मांगते परमेश्वर कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल, वे आपके राज्य के विस्तार के लिए आप उनको इस्तेमाल करें प्रभु। यस लॉर्ड। सुसमाचार अनेक लोगों तक पहुंचे प्रभु। यस लॉर्ड। वो धैर्य के साथ आगे बढ़े प्रभु, उनके समाज में, उनके रिश्तेदारों में। यस लॉर्ड। आपका सुसमाचार उनके द्वारा फैले। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप उनको भर प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको आशीषित करते हैं। पास्टर जेकब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इतने सालों से आपने उनको अनुग्रह दिया कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए। यस लॉर्ड। सत्यता से और विश्वास योग्यता से जो आपने उनको गुण दिया है प्रभु, द ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन विच he has run the affairs of the church with faithfully that he has done. We praise you Father. हम आपको धन्यवाद देते हैं उनका जीवन के लिए। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आने वाले सालों में भी आप उनको अनुग्रह दे प्रभु, बुद्धि दे परमेश्वर कि वो सही रीति से अपना दौड़ को पूरा करे। यस लॉर्ड। आप जिस बुलावट से उनको बुलाए प्रभु, वो बुलावट को वो पूरा करे प्रभु। यस लॉर्ड। आप उनको अनुग्रह दे। धन्यवाद परमेश्वर। उनका जीवन हम सब के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष के रूप में है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके हर एक कमी घटियों में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको चलाए प्रभु। उनके जीवन में जो भी कमियां हैं, अगर गुणों में कुछ कमियां हैं प्रभु, आप उनके मन के आंखों को खोल प्रभु, ताकि वो और भी अपने जीवन में सुधार लाकर और भी आपके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम पास्टर जेकब को भी आशीषित करते प्रभु। यस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise God. God bless you all. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Thank you. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise Lord, brother. Everyone. Praise Lord, brother. Praise Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise Lord. आप सभी लोग कहते हैं। Good night, everyone. Good night. Good night.